A very good morning to all my dear students. So today for 12th standard I am taking chapter 4, The Enemy. This is a long chapter and an interesting one also. The Enemy, written by Pearl S. Buck. Pearl S. Buck, she's a lady. I have shown picture in your study notes also, and she was a very creative writer. She has used throughout the story from beginning to end, you are found yourself spellbound. You will not lose any interest. This is a complete, you can say that, a movie type of story. You will find a proper beginning, in the middle part good, and at the end also a complete end you will find this. So while reading this chapter you will find that you are watching or you are reading any Bollywood movie. I will say that Bollywood movie. So the Enemy chapter, written by Pearl S. Buck. Let's start. It is the time of the World War. So the setup of the chapter is that it was the time of World War, and you know that an American prisoner of war is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor. You know that during the World War, America and Japan, they were enemies. They were, very, I can say that topmost enmity was between this America and Japan. You know, the nuclear attack of America on Japan, fine, on Hiroshima and Nagasaki. So you can have the idea what kind of relationship these two countries were having, America and Japan. Then what happened? One American prisoner of war is washed ashore. Prisoner of war, it means an American soldier. He might be shooted by this Japanese army and he was injured. And what happened? He was washed ashore in a dying state. His condition was very terrible, and where he stayed and is found at the doorstep of a Japanese doctor. So while injured in the sea, and he was found at the doorstep of a Japanese doctor whose house was on the sea coast. Should he save him, a doctor, or hand him over to the army as a patriot? Now that doctor was in a flex situation, what to do of this prisoner of war? As a Japanese, he is not allowed to cure this man because he was from an enemy country, and America and Japan was at loggerheads. Fine. So he is not supposed to help that man. On the other side, as a doctor, his inner conscience doesn't allow to let him die, because a doctor, the profession of medical science doesn't allow this. If you can help a person, then you'll make him dead. So I hope the condition is clear to you. I will use bilingual method while explaining this chapter so that you understand it better, so that you can attempt your answers very well if you are having story well in your mind. So let's take this chapter in a bilingual way. In my earlier chapter, I was explaining only in this your English language, but today we will deal in a bilingual method. Dr. Sadao Huki house was built on a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played. अब ये जो है स्टोरी की स्टार्टिंग है बेटा. स्टार्टिंग क्या है? डॉक्टर सदाओ हुकी के बारे में बताया गया है. पहले उसका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि किस तरीके का इंसान वो है, क्या उसकी लाइफस्टाइल है और क्या कुछ वो करता है. सो डॉक्टर सदाओ हुकी हाउस वॉज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ द जैपनीज कोस्ट. जैपनीज कोस्ट यानी कि बीचेस वगैरह होते हैं ना, सी के किनारे. सी के किनारे वहाँ पे उसका जो घर है वो बना हुआ है डॉक्टर सदाओ हुकी का. तभी तो वो अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर बहता हुआ डाइंग स्टेट में उसके घर के पास आके उसे मिलता है. वेयर एज अ लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड. अब इससे हमें पता चलता है कि वो जो घर है वो उसके फादर के टाइम का बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर सदाओ एज अ लिटिल बॉय खेला करता था. सी कोस्ट के आसपास उसका घर है. द लो स्क्वेयर स्टोन हाउस. अब ये घर किस चीज़ का बना हुआ है? स्टोन हाउस, पत्थर का घर बना हुआ है. वो सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव अ नैरो बीच दैट वॉज आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स. पाइन्स जो है बेटा वो ट्रीज़ होते हैं जो बहुत ब्यूटीफुल ट्रीज़ होते हैं, जिनका नीचे से जो स्टेम है काफ़ी वाइड होता है. बॉटल शेप ट्रीज़ हम उसको बोलते हैं. अगर आपको थोड़ा डाउट हो तो आप गूगल सर्च करके देख भी सकते हो कि पाइन ट्रीज़ किस तरीके के हैं. तो उसका जो घर था उसको पाइन ट्रीज़ ने आउटलाइन दिया हुआ था. आउटलाइन यानी कि उसके घर के चारों तरफ पाइन ट्रीज़ लगे हुए थे जो थोड़े से बेंट थे, थोड़े से ऊपर से झुके हुए थे, क्योंकि जो
पाइन ट्रीज़ है ये हाइट में बहुत ज़्यादा होते हैं और एट द टॉप कोकोनट की तरह आप इसमें आइडिया लगा सकते हो कि वो थोड़े से ऊपर से झुके हुए थे. आई होप इतना आपको समझ में आया. स्पोर्टिंग हिमसेल्फ और एज अ बॉय सदाव हैड क्लाइम्ड द पाइन्स. एज अ बॉय जब डॉक्टर सदाव हमारे बहुत कम एज में थे, बॉयहुड में थे, तो वो इन पाइन ट्रीज पे चढ़ा करते थे क्योंकि वो उनका एक डेली रूटीन था. खेलते खेलते वो उस पर चढ़ा करते थे. स्पोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फुट, और वो बेयर फुट नंगे पाँव उन ट्रीज पे चढ़ने का काम करते थे. कौन से ट्रीज पे? पाइन ट्रीज पे. एज ही हैड सीन मैन टू डू इन साउथ सीज व्हेन दे क्लाइम्ड फॉर कोकोनट्स. और इसमें राइटर खुद ही क्लियर करती है. उनका कहना है कि जैसे हम कोकोनट ट्री पे चढ़ते हैं ना, आपने देखा होगा किसी को चढ़ते हुए बेयर फुट, किस तरीके से लॉन्ग ट्रीज हैं और बेयर फुट उस पर चढ़ा जाता है, तो इसी तरीके से डॉक्टर सदाव पाइन ट्रीज पे चढ़ते थे. हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड्स ऑफ दो सीज एंड नेवर हैड ही फेल टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड. नाउ सी स्टूडेंट, वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू से हियर कि डॉक्टर सदाव के जो फादर थे ना, वो एक टिपिकल जैपनीज़ थे. टिपिकल जैपनीज़ का मतलब जो अपनी कंट्री, अपने कल्चर के साथ किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे. देशभक्त, पेट्रोइट. सो वो क्या कहते हैं? हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड ऑफ दो सीज. आइलैंड होते हैं ना, जैसे सीज के बीच में जो कंट्रीज़ के रिलेटेड आते हैं, जैसे आपके अंडोमान निकोबार है, वो क्या है? सी के बीच में है, लेकिन उसको इंडिया का एक पार्ट, इंडिया का आइलैंड, इंडिया के अंडर उसे माना जाता है. तो ऐसे ही जापान जो था उसके आसपास कुछ आइलैंड्स थे, और उसके जो फादर थे, डॉक्टर सदाव हुक्की के फादर, वो उसे लेकर जाते थे वहाँ पे. एंड नेवर हैड ही फेल टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड. और कभी भी इस चीज़ को कहने से वो नहीं चूकते थे, इस चीज़ को कहने से वो नहीं भूलते थे. क्या कहते थे वो? दोज आइलैंड्स यॉन्डर. यॉन्डर मीन्स बॉय, बच्चे, जो हम जनरली छोटे बच्चों को एड्रेस करने के लिए बोलते हैं. दोज आइलैंड्स यॉन्डर दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान. आज जैसे मैंने आपको बताया, ही वॉज अ टिपिकल जैपनीज, ही वॉज वेरी पेट्रोइटिक, सो ही यूजली इनकलकेट दीज थिंग्स इन हिज बॉयज माइंड. What that don't forget that those islands yonder, they are the stepping stones to the future for Japan. So ये अपने बच्चे के दिमाग में वो डालना चाहते थे कि ये जो आइलैंड्स हैं ये हमें, हमारे कंट्री को बहुत आगे तक लेके जाएंगे, ये हमारा स्टेपिंग स्टोन्स है. Where shall we step from them? सदाव हैड आस्क्ड सीरियसली. अब डॉक्टर सदाव जो एक छोटे बच्चे थे, उन्हें ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती थी, तो बड़ा इनोसेंटली वो अपने फादर से क्वेश्चंस करते थे. क्या बोलते थे? वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम दैम. अच्छा, ये स्टेपिंग स्टोन्स है हमारी कंट्री के, तो हम कहाँ जाएंगे, कितना आगे जाएंगे? हु नोज, हिज फादर हैड आंसर्ड. और उसके फादर इस बात पे बोलते थे, हु नोज दिस, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट. So he said that I am not having exact idea where we will go, but yes, we will surely achieve something. Or in short, he was appreciating Japan, that Japan is a developing country and surely will be a very much in progress in nearby future. So let's start another page, page number 25. Yes. Sadav had taken this into his mind as he did everything his father said. Please remember that Dr. Sadav was the biggest fan of his father. So he took every word spoken by his father very sincerely. So Sadav had taken this into his mind as he did everything his father said. जो भी उसके father बोलते थे वो बिल्कुल अपने दिमाग में उसको बिठा के चलता था. His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son. अब उसके फादर हम नहीं कह सकते कि बहुत हंसी मजाक करते थे, घूमा फिरा करते थे. नो, हिज फादर नेवर जॉग्ड और नेवर प्लेड विद हिम, बट ही वॉज वेरी मच डेडिकेटेड. ही टुक इन्फिनाइट पेन्स अपॉन हिम हु वॉज हिज ओनली सन. सो डॉक्टर सदाव वॉज हिज ओनली son, and his father did his best for his career, for his life, everything. Sadav knew that his education was his father's chief concern. ये हमारे पेरेंट्स का भी होता है कि बाद अदर एक्टिविटीज़ में वो थोड़ा कम ही इंटरेस्ट लेते हैं. उनका क्या होता है, एजुकेशन जो है वो चीफ कंसर्न है. तो डॉक्टर सदाव का भी अपने बेटे की एजुकेशन जो थी वो चीफ कंसर्न थी. फॉर दिस रीज़न ही हैड बीन सेंट एट 22. प्लीज़ मार्क दिस.
For this reason, he had been sent at 22 to America to learn all that he could learn of surgery and medicine. So 22 ईयर्स की एज में डॉक्टर सदाव को अमेरिका भेज दिया गया. अब ये पीछे की बात हमें राइटर बता रहे हैं. उस टाइम अमेरिका और जापान के बीच में एज सच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, जो बाद में वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ. जब डॉक्टर सदाव सिर्फ 22 ईयर्स के थे तो उनके फादर ने उन्हें अमेरिका भेजा. क्या करने के लिए? सर्जरी एंड मेडिसिन. सर्जरी एंड मेडिसिन मेडिकल प्रोफेशन आपको पता है. एक होता है डॉक्टर जो ट्रीटमेंट देता है, एक होता है सर्जन जो सर्जरीज करता है, ऑपरेशंस करता है. तो वो सर्जरी और मेडिसिन की स्टडी के लिए 22 ईयर्स की एज में अमेरिका उनको भेज दिया गया. ही हैड कम बैक एट 30 और 30 ईयर्स की एज में वो वापस आए, यानी कि 8 साल उन्होंने अमेरिका में बिताए. तो हम ये बोल सकते हैं कि अमेरिका से भी उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्टैक्ट, कोई ना कोई अटैचमेंट, क्योंकि 8 ईयर्स अपनी लाइफ के उन्होंने यहाँ दिए हैं, तो कोई ना कोई उनका अटैचमेंट वहाँ पे था. सो 8 ईयर्स वहाँ पे उन्होंने स्पेंड किए. And therefore his father died. He had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist. So उनके फादर का जो चीफ कंसर्न था अपने बेटे को एक डॉक्टर और एक सर्जन बनते हुए देखना, अपनी डेथ से पहले उनके फादर की डेथ से पहले डॉक्टर सदाव ने वो ड्रीम उनका पूरा कर दिया. यानी कि उनके फादर उनको एज अ डॉक्टर, एज अ सर्जन देखने के बाद ही उनकी डेथ हुई. Because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean. सो डॉक्टर सदाव को हम एक गुड सर्जन इसलिए बोल सकते हैं कि डॉक्टर जो है वो क्या कर रहे थे? परफेक्टिंग अ डिस्कवरी, यानी कि रिसर्च कर रहे थे, अपना एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें क्या कोई भी घाव, स्पेशली गोली का कोई भी घाव या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है उसको बिल्कुल एंटायरली क्लीन कैसे किया जाता है. देखो आज के टाइम में तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ है. आप बोलोगे मैम व्हाट इज़ अ बिग डील इन दैट, एवरी डॉक्टर इज डूइंग nowadays. बट एट दैट टाइम you know ना, when it was attacked in 1945, yes, in 1945 this nuclear attack was on Japan. So it was before that in 1940s. So at that time it was a ग्रेट डील. सो उनको हम अच्छा साइंटिस्ट इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि वो एक ऐसी डिस्कवरी कर रहे थे जिसमें हम वुंड्स को, यानी कि घाव को कंप्लीटली क्लीन कर सकते हैं. ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद हिज ट्रूप्स. और यही रीज़न था कि वो अपने डिस्कवरीज में बिजी थे कि डॉक्टर सदाव को आर्मी के साथ, ट्रूप्स के साथ बाहर नहीं भेजा गया. क्यों? क्योंकि वो एक ग्रेट अचीवमेंट थी. अगर डॉक्टर सदाव ये वाला अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लेते तो वो बहुत बड़ी वॉर के दौरान बहुत बड़ा एक हेल्प उनके सोल्जर्स को होती. इसलिए ये डिसीज़न लिया गया कि उनको अपनी कंट्री में ही रखा जाए ताकि वो अपना ये एक्सपेरिमेंट पूरा करें, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए. Also, he knew there was some slighter danger that the old journal might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, and for this possibility Sadao was being kept in Japan. This question can be asked student, why he was not sent to abroad with troops. तो उसके दो रीज़न थे. फर्स्ट रीज़न क्या था कि वो एक ऐसी डिस्कवरी कर रहे थे जिसमें वुंड्स को एंटायरली क्लीन किया जाता था. फाइन. तो ये बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कंट्री के लिए. फाइन. और दूसरा ये था कि वहाँ का एक ओल्ड जर्नल था जापानीज़ आर्मी का, जो काफ़ी इंटेलेक्चुअल बोला जाता था, काफ़ी इंपॉर्टेंट उनके आर्मी में उसका प्लेस था. तो उसको भी मेडिकल रीजंस थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, और जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर सदाव के पास था, क्योंकि डॉक्टर सदाव एक बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर थे. तो ये कुछ रीजंस थे जिस वजह से डॉक्टर सदाव को जापान में ही रखा गया. उनको बाहर आर्मी के साथ नहीं भेजा गया. बाहर इन द सेंस हम कह सकते हैं जो भी उनका क्रिटिकल एरियाज़ थे जहाँ उनकी आर्मी को रखा जाता था, कंट्री से थोड़ा आउटर एरियाज़ में या इन सब बेसिक फैसिलिटीज़ से दूर, आप समझ सकते हो उन चीज़ों में. तो यहाँ पे उनको नहीं भेजा गया. आई थिंक इट्स क्लियर अप टू नाउ. प्रोसीड. क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ. अभी आपको इंट्रोडक्शन बता दिया बेटा कि उनको जापान में क्यों रखा गया, 8 साल कैसे वो अमेरिका में स्पेंड करके आए, उनके फादर का क्या चीफ कंसर्न था. डॉक्टर सदाव ना सिर्फ एक डॉक्टर थे बल्कि वो एक सर्जन भी थे. किस चीज़ के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ये सब आपको क्लियर है. आप देखो सिचुएशन क्या है. क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ. अब अगर सी बीच पे आप कभी गए हैं तो शाम के टाइम ना अगर आप देखते हो तो धुंध सा, एक मिस्ट सा, क्लाउडी सी फॉर्मेशन आपको वहाँ पे नज़र आती है.
तो उस ओशन में ना ऐसे ही फोग सा, ऐसे ही धुंध सी नज़र आने लगी. The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold waves. और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से, अनएक्सपेक्टेड वार्मथ, दिन बहुत गर्म होने की वजह से, शाम के टाइम, रात के टाइम जो कोल्ड वेव सी में चल रही थी उस वजह से बहुत धुंध वहाँ पे थी. यानी कि उनका जो घर था उस घर के शाम का टाइम था और बहुत ज़्यादा धुंध वहाँ पे थी, हैवी फॉग नज़र आ रही थी. Sadao watched mist hide outlines of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house. अब डॉक्टर सदाव अपने घर के बाहर कहीं पे हैं और वो देख रहे हैं कि किस तरीके से जो धुंध है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई आ रही है, आउटलाइन पाइन ट्रीज़ के तक पहुंच चुकी हैं और बहुत ही जल्दी वो क्या होंगी, घर के नीचे तक जो धुंध है वो नज़र आएगी. यानी कि जो धुंध है वो फॉग जो है वो इंक्रीज होती जा रही है. Wreathing around the pines, in a few minutes fog would be wrapped about the house too. और कुछ ही देर में उनका जो घर है वो भी पूरा फोग से कवर हो जाएगा, यानी कि सब कुछ बहुत धुंधला वहाँ पे नज़र आने लगा है. Then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with the 2 children. यानी कि वो बाहर बैठे हुए अपने घर के बाहर, and he is thinking something, he is passing his time, and he has decided when fog will increase, it will cover the surrounding of my house. I will go inside where Hannah and his 2 children are waiting for him. यानी कि उनके घर में उनकी वाइफ है और उनके 2 बच्चे हैं. So this is a very short and sweet family he is having. But at this moment the door opened and she looked out a dark blue woolen heroi over her kimono. प्लीज़ इस लाइन को समझिए. डॉक्टर सदाव प्लानिंग कर ही रहे हैं कि वो घर के अंदर जाएंगे. इससे पहले कि वो जाते, घर का दरवाज़ा खुलता है और वो देखते हैं, शी लुकड आउट, शी हैना, हिज वाइफ. हैना बाहर आई है, उसने डार्क ब्लू कलर का हेरोई जो होता है वो एक जैपनीज़ ड्रेस है, आपको पिक्चर में शो भी हो जाएगा, वो उसने पहनी हुई है ओवर हर किमीनो भी एक लॉन्ग गाउन है जो जनरली जैपनीज़ लोग पहनते हैं. आप इसको सर्च करके भी देख सकते हो. She came to him affectionately and put her arm through his as he stood, smiled and said nothing. यानी कि हैना जो है वो भी बाहर आ चुकी है और डॉक्टर सदाव के साथ वहाँ पे खड़ी हुई है. He had met Hannah in America. अब यहाँ पे जो राइटर है वो थोड़ा सा हैना का भी हमें डिस्क्रिप्शन देंगे. ये फाइनली इनकी शादी कैसे हुई डॉक्टर सदाव हुक्की की और अमेरिका की, सॉरी अमेरिका नॉट, हैना. सो हैना इन अमेरिका. सो वो हैना से अमेरिका में मिले थे, बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जैपनीज़. उन्होंने उसे फर्स्ट साइट जो है डिसाइड किया कि दैट आई एम गोइंग टू मैरी दिस गर्ल, लेकिन पहले उन्होंने ये श्योर किया कि वेदर शी इज़ अ जैपनीज़ और नॉट. जैपनीज़ और नॉट, वाई डू यू रिमेंबर? डॉक्टर सदाव के फादर जो एक टिपिकल जैपनीज़ थे, वो एक अमेरिकन लड़की से अपने बेटे की शादी कभी नहीं करेंगे. सो दैट्स वाई ही फर्स्ट मेक इट श्योर दैट शी इज़ अ जैपनीज़. और वैसे भी अमेरिकन और जैपनीज़ तो बाई फेस ही हम बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं. हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर एक्सेप्टेड unless she had been pure in her race. Now please mark this word, प्योर इन हर रेस का मीन्स उसके मदर और फादर दोनों ही जैपनीज़ होने चाहिए. दिस मीन्स प्योर इन रेस. अगर उसका ऐसा हुआ कि फ़ादर जैपनीज़ है या मदर अमेरिकन है, या मदर जैपनीज़ है फादर अमेरिकन है, तो उसके फादर बिल्कुल भी उसकी शादी उससे नहीं होने देते. सो उन्होंने ये श्योर किया कि जो हैना है वो प्योर इन रेस है, यानी कि टिपिकल जैपनीज़ है. He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah. ये थोड़ा सा एक्सेजरेशन है. वो सोचता है कि अगर मुझे हना नहीं मिलती तो मैं किससे शादी करता. एंड बाय व्हाट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे. अब थोड़ा सा बताया जाता है कि इनकी फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हुई थी. बाई चांस, लिटरली बाई चांस, ऐसा कोई प्री प्लान नहीं था, ये तो ऐसे ही मिले थे. कैसे? एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस. एक अमेरिकन प्रोफेसर थे, उसके घर पे ये मिले. The professor and his wife had been kind people, anxious to do something for their few foreign students. अब जो ये प्रोफेसर थे, अमेरिकन प्रोफेसर, और उसकी जो वाइफ थी, ये थोड़े से फ्रेंडली टाइप के थे और ये हमेशा अपने फॉरेन स्टूडेंट्स, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो दूसरी कंट्री से यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते थे. या इन द सेंस उनको कभी डिनर पे बुलाया या उनके लिए कोई और हेल्प की. सो ऐसे ही उन्होंने बुलाया हुआ था. एंड द स्टूडेंट्स, though bored, had accepted this kindness.
और कहते हैं हालांकि हम उनके घर जाके बोर हो जाते थे, डॉक्टर सदाव को उस प्रोफेसर के घर जाना अच्छा नहीं लगता था, बट फिर भी वो आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड हाँ बोल देते थे. Sadhu had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night. अब देखो प्रोफेसर का नाम हमें पता चल गया. प्रोफेसर का नाम क्या था? प्रोफेसर हार्ले. तो अब वो हैना से बता रहे हैं ना, उस दिन ना मैं प्रोफेसर के घर जाने नहीं वाला था, जिस दिन तो मुझे प्रोफेसर के घर मिली थी, बट मैं बाई चांस ही वहाँ पे चला गया. क्यों नहीं जाना चाहता था? द रूम्स वर सो स्मॉल, क्योंकि उनके घर के जो रूम्स थे वो बहुत स्मॉल थे. द फूड सो बैड, और भाई हमारे जो प्रोफेसर हार्ले हैं, इनकी जो वाइफ है वो बहुत ही गंदा खाना बनाती थी. द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल. वॉल्यूबल मीन्स टॉकेटिव. नोबडी लाइक्स अ वुमेन और अ मैन हु टॉक्स टू मच, सो शी इज़ वेरी वॉल्यूबल. शी यूज टू टॉक सो मच, दैट्स वाई डॉक्टर सदाव हुकी डजेंट वॉन्ट टू गो देयर. अभी जापनीज़ कल्चर की मैं एक बात और बताती हूँ बेटा. ये जो लोग होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा रिजर्व होते हैं. आप इन्हें देखोगे कि इनका माइंड इतना एक्टिव होता है कि ये अपने आसपास सराउंडिंग की फालतू बातों में ना इनका ध्यान ही नहीं होता है. बहुत लिमिटेड बोलना और बहुत आराम से मतलब अपने काम पे फोकस करना. और यही रीज़न था कि प्रोफेसर हार्ले की वाइफ डॉक्टर सदाव को इरिटेट करती थी, बिकॉज शी वॉज वेरी वॉल्यूबल एंड शी यूज टू टॉक सो मच. बट ही हैड गोन एंड देयर ही फाउंड हैना. बट कहता है थैंक गॉड आई वेंट देयर. उस दिन मेरा जाने का मन नहीं था, बट कैंसिल करते करते मैं बाई चांस चला गया. हमारे साथ भी होता है ना ऐसा, हमें कहीं जाना हो, मन नहीं होता है, नहीं जाएँ नहीं जाएँ नहीं जाएँ, और लास्ट में हम चले जाते हैं. सो लाइक दैट हैपेंड. अ न्यू स्टूडेंट, और हैना जो थी वहाँ पे एक न्यू स्टूडेंट थी, एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल. इफ़ इट वर ऑल पॉसिबल मीन्स अगर सारी बातें ठीक होती हैं, सारी बातें, फर्स्ट शी शुड बी जैपनीज़, प्योर इन रेस. अगर ये सारी चीज़ें ठीक है तो हैना से उसने फर्स्ट मीटिंग में ही डिसाइड कर लिया था दैट आई विल नॉट माइंड टू मैरी दिस गर्ल इफ़ इट इज़ पॉसिबल. सो इतना तो इंट्रोडक्शन उनका कंप्लीट हो गया. घर के बारे में बता दिया, फादर के बारे में बता दिया, उसके बाद उनकी फ़र्स्ट मीटिंग कहाँ हुई ये बता दिया, प्रोफेसर के बारे में बता दिया, प्रोफेसर हार्ले की वाइफ के बारे में बता दिया. अब जो हमारी स्टोरी है ना बेटा, वो रियल यहाँ पे स्टार्ट होती है. नाउ सी, now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him. So भाई ये जो कपल है ये happily married है, they are having 2 children and they are extremely happy with each other. Even though they had been married years enough to have the 2 children, for they had not married heedlessly in America. और कहते हैं हीडलेसली का मतलब होता है कि भाई हाँ अमेरिका में डिसाइड किया कि हम शादी करेंगे और वहीं से शादी करके जापानीज़ वापस आई हूँ. नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं किया. दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल एंड हैड कम होम टू जापान, एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज़ वे. इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, घर वापस आए, अपनी कंट्री वापस आए, और वहाँ पे ओल्ड ट्रेडिशनल वे में इनकी शादी जो है वो की गई. Although Sadao and Hannah had talked everything over beforehand in the sense पहले ही उन्होंने सारा अपना फाइनल कर लिया था अपने प्रोफेशन को लेकर, या जो भी आगे प्रॉब्लम ना हो, तो everything was clear between these two. They were perfectly happy. She laid her cheek against his arm. Now see, they were sitting there and they are remembering some of their old pretty moments. Now start. It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. अब क्या हुआ बेटा, ये आपस में बात कर ही रहे थे कि इन्हें धुंध में ना कुछ ब्लैक सा पोस्चर सा इनको नज़र आया. आप पिक्चर में भी देख सकते हो, समथिंग ब्लैक. सो ये उनको नज़र आया. इट वॉज अ मैन. और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई आदमी, इतना आइडिया लग रहा था क्योंकि जानवर है या किसकी परछाई है या किस तरीके की फॉर्म बन रही है, हम इजीली थोड़ा सा रिकॉग्नाइज कर लेते हैं. इट वॉज अ मैन. ही वॉज फ्लंज अप आउट ऑफ द ओशन. फ्लंज. सो वो क्या कर रहा था बेटा, वो लड़खड़ाता हुआ खड़ा हो रहा था, फिर गिर रहा था, फिर वो उठने की कोशिश कर रहा था, फिर वो गिर रहा था. इट सीम्ड टू हिज फिट बाई अ ब्रेकर. ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स. लड़खड़ाते हुए थोड़ा वो चला. His body outlined against the mist, his arm above his head. Then he curled mist hid him again. और दोबारा से थोड़ी सी उसकी परछाई नज़र आई और दोबारा से क्या हुआ, वो धुंध में गायब हो गया. बेटा अगर आपने सर्दियों में नोटिस किया हो ना, तो फोग ऐसी होती है. कभी फोग बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी, बहुत आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा. कभी कभी बीच में थोड़ी सी हल्की हो जाती है तो हल्का हल्का में नज़र आने लगता है. तो डॉक्टर सदाव और हैना ने देखा कि कोई आदमी है जो इस तरीके से खड़े होने की कोशिश कर रहा है और दोबारा गिर रहा है.
Who is that? Hannah cried. She dropped Sadao's arm and they both leaned over the railing of the veranda. रेलिंग आपको अच्छे से पता है, बाहर अपने घर के उसमें वरांदा में वो बैठे हुए थे, और जैसे उन्होंने देखा तो हैना एकदम से चिल्लाई, अरे ये कौन है, और वो आगे झुक के देखने की कोशिश उसको करते हैं. Now they saw him again. The man was on his hands and knees crawling. दोबारा देखा कि वो आदमी जो है वो क्रॉल करके somehow पानी से बाहर आने की कोशिश कर रहा है. बेटा आप इमेजिन कर सकते हो एक ऐसा सोल्जर, एक अमेरिकन सोल्जर है, वो हमें ऑलरेडी पता है, तो वो क्या कर रहा है, वो क्रॉलिंग करके वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है और वो इंजर्ड है. Then they saw him fall on his face and lie there. उसके बाद क्या होता है, वो अपने फेस के बल वो गिर जाता है और वहीं पे लेट जाता है. A fisherman perhaps, Sadao said. अब सदाओ आइडिया लगाता है, ओबियसली बेटा नोबडी कैन थिंक कि कोई अमेरिकन प्रिजनर ही आके डायरेक्टली वो जवाब दे देगा कि यहाँ पे गिर गया हमारे पास आके. नो, फर्स्ट आइडिया उसने क्या लगाया कि शायद ये कोई फिशरमैन है, वॉश्ड फ्रॉम हिज बोट, जो अपनी बोट से बहता हुआ, अपनी बोट से शायद उसकी बोट जो है वो पानी में टूट गई है, डूब गई है, और ये किसी तरीके से बचता हुआ यहाँ पे आ गया. He ran quickly down the steps and behind him Hannah came, her wide sleeves flying. अब वो डॉक्टर सदाव इतना बोल के वहाँ से भागता है, भागता वो उसकी हेल्प करने के लिए जाता है और उसके पीछे पीछे हैना जो है वो जाती है. वाइड स्लीव्स फ्लाइंग. आप अगर किमोनो की अगर आप देखोगे गूगल पे जाके प्लीज़ फ़ोटो देखना, तो उसकी जो स्लीव्स होती हैं बहुत बड़ी बड़ी होती है, और जब वो भाग रही थी तो उसकी जो स्लीव्स थी वो भी फ्लाई कर रही थी. ये बहुत छोटी छोटी बातें यहाँ पे जो हमारे राइटर हैं वो आपको एक इम्प्रेशन देने के लिए, एक कंप्लीट आपके दिमाग में डालने के लिए कि सीन क्या था. मैंने पहले बताया मूवी की तरह ये आपकी जो चैप्टर है ये चल रहा है. अब वो जाते हैं भागते हैं उसको पकड़ने के लिए. A mile or two away on either side there was fishing villages, but here was only the bare and lonely coast, dangerous with rocks. अब राइटर बताता है कि वो जो सी था वो फिशिंग के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि वो सी जो था वो बहुत ज़्यादा डेंजरस था, उसमें बहुत पत्थर थे और बहुत डेंजरस था. द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विथ रॉक्स, और पूरा ये भरा हुआ है किससे, पत्थरों से. Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. अब वो भागते हुए जा रहे हैं तो डॉक्टर सदाव आइडिया लगा रहे हैं कि अगर ये सी के अंदर ये गिरा है तो इस सी के अंदर इतने पत्थर हैं कि ये आदमी बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हुआ होगा, क्योंकि ये सी बहुत डेंजरस है. They saw when they came towards him that indeed it was so. और जैसा उन्होंने आइडिया लगाया, बिल्कुल सही लगाया. That man was highly injured, totally. The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. नेचुरल सी बात है बेटा, खून निकल रहा था उसकी बॉडी से. जहाँ वो सी के किनारे गिरा हुआ है वहाँ क्या मिलेगी, मिट्टी मिलेगी, और वहाँ पे आपको ब्लड के स्टेन्स ईजिली वहाँ पे नज़र आ रहे थे. He is wounded, Sadao exclaimed. He made haste to the man. Haste to the man, जल्दी से वो उस आदमी के पास गया. Who lay motionless, his face in the sand. और अभी तक उन्हें नहीं पता था कि ये आदमी कौन है, क्योंकि उसका जो फेस था वो उल्टे मुंह वहाँ पे गिरा हुआ था और फेस जो था वो मिट्टी में उसका वहाँ पे दबा हुआ है. फाइन. एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड सोक्ड विद सी वाटर, और उसके सर पे एक कैप है जो पानी से बिल्कुल भरी हुई है. ही वॉज इन वेट रैग्स ऑफ गारमेंट्स. रैग्स ऑफ गारमेंट्स, रैग्स का मतलब होता है जैसे फटे कपड़े फट नहीं जाते बहुत पुअर कंडीशन में, तो वो कपड़े उसने पहने हुए थे. Sadao stopped Hannah at his side and turned the man's head. They saw the face. अब सबसे पहले क्या किया, उन्होंने उस आदमी को सीधा किया, जिसका सिर मिट्टी में बिल्कुल धंसा हुआ था उसको सीधा किया, और उन्होंने देखा. अब जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ बेटा, हम बाई फेस आइडिया लगा लेते हैं ना कि ये चलो इंग्लैंड और अमेरिकन्स के बीच में तो ज़्यादा ब्रिटिशर्स और अमेरिकन्स के बीच में आइडिया नहीं लगा सकते, लेकिन आप एक चाइनीज़ को पहचान लोगे, आप एक जैपनीज़ को पहचान लोगे, आप एक साउथ अफ्रीकन को पहचान सकते हो. सो इस तरीके से थोड़ा सा कलर और फीचर से हम आइडिया लगा सकते हैं. तो जैसे ही उसको टर्न किया गया, अ वाइट मैन, हैना विस्पर्ड. हैना धीरे से कहती है डॉक्टर सदाव को, अरे he's a white man. Yes, it was a white man. The wet cap fell away and there was his wet yellow hair. Yellow hair, ये जो आपके ब्रिटिशर्स के अमेरिकन्स के गोल्डन हेयर होते हैं वो बताए गए हैं. जापानीज़ के तो ब्लैक होते हैं. लॉन्ग एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, और उसके बाल इस तरीके से बढ़े हुए हैं जैसे बहुत हफ्तों से वो मेंटेन नहीं किए गए.
एंड अपन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस वॉज अ रफ येलो बियर्ड, और उसका टॉर्चर्ड जो इंजर्ड फेस है उसकी बियर्ड जो थी वो भी येलो कलर की थी. ही वॉज अनकॉन्शियस एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम. अब वो जो क्या बताऊँ, अमेरिकन जो है वो क्या है, अनकॉन्शियस है और उसे नहीं पता कि वो कहाँ पे है और कौन उसकी क्या हेल्प कर रहा है, बट उसकी बियर्ड देखकर, उसके बाल देखकर साफ पता चलता है कि दैट ही इज़ एन अमेरिकन. नाउ सदाव रिमेंबर्ड द वुंड एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगेन टू सर्च फॉर इट. अब बेटा डॉक्टर है, नेचुरल सी बात है. अब टीचर्स की क्या प्रॉब्लम होती है, टीचर्स को अगर आप देखोगे ना तो वो मिस्टेक्स निकालने में बहुत आगे मिलते हैं. कोई भी आप लिख दो, सबसे पहले टीचर का ध्यान कहाँ जाएगा कि ये गलती कहाँ पे है. तो हर प्रोफेशन से इंसान अटैच होता है. तो एक एक डॉक्टर जो है वो सबसे पहले ये देखेगा कि इसको चोट लगी कहाँ पे है. तो डॉक्टर सदाव ने वैसे ही किया और अपनी एक्सपर्ट फिंगर्स के साथ वो ढूंढने लगे कि इसको घाव लगा कहाँ है. ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, और जैसे ही उन्होंने, जहाँ वो इंजर्ड था, जैसे उन्होंने टच किया वहीं से ब्लड निकलना शुरू हो गया. ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सदाव सो दैट अ गन वुंड हैड बीन रीओपन्ड, यानी कि एक गोली का वो है, घाव है, और जैसे ही डॉक्टर सदाव ने हाथ लगाया वो रीओपन हो गया. द फ्लैश वॉज ब्लैकेंड विद पाउडर. क्यों, कैसे उसे आइडिया लगा, ये तो डॉक्टर ही बेटा समझ सकते हैं कि कैसे क्या है, क्योंकि वो ब्लैक एंड विद पाउडर, जो गन पाउडर होता है उसकी वजह से वो एरिया ब्लैक पड़ गया था. समटाइम्स नॉट मैनी डेज अगो द मैन हैड बीन शूट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड टू टेक केयर. अब डॉक्टर ने ये भी आइडिया लगा लिया कि बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले इसे गोली मारी गई है और उसके बाद इसका किसी ने ध्यान नहीं दिया. इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वुंड, और ये इस लड़के का बैड चांस है कि उसी घाव पे रॉक्स लग गई, जिस वजह से ये जो चोट है ये और ज़्यादा बढ़ गई है, या इसकी जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है. अब आपको इस चैप्टर का टाइटल थोड़ा सा समझ में आया होगा, द एनिमी, क्योंकि ये अमेरिकन जो थे जापानीज़ के लिए ये एनिमीज़ थे, और फाइनली डॉक्टर सदाव, उनके पास एक एनिमी आ चुका है. अब वो क्या करें, उसे बचाएं या उसे वहाँ पे मरने के लिए छोड़ दें. देखिए, Oh, how he is bleeding, Hannah whispered again in a solemn voice. Solemn होता है serious. अब जैसे खून देखा तो हैना ने कहा, oh, how he is bleeding, अरे इसको तो बहुत खून बह रहा है. The mist screened them now completely. अब वो धुंध में सारे के स्क्रीन होता है कवर, तीनों के तीनों धुंध में फिर छुप गए, यानी कि किसी ने भी नोटिस नहीं किया. And at this time of a day no one came by. और अब ऐसा टाइम था कि आसपास कोई आ भी नहीं रहा था. The fishermen had gone home and even the chance beachcombers would have considered the day at an end. The fishermen had gone, जो फिशरमैन वहाँ पे आते थे वो वहाँ से जा चुके थे घर, और जो बीच कॉमर्स का मतलब होता है जो बीच पे घूमने के लिए, टहलने के लिए लोग आते हैं, उन्होंने भी द डे एट अ एंड, यानी कि उनका टाइम भी नहीं है वहाँ पे, कोई भी वहाँ पे फ़िलहाल नहीं है. What shall we do with this man? सदाव मटर्ड. अब सदाव कहता है कि क्या करें इस आदमी का, but his trained hands seemed of their own will to be doing what they could to stanch the fearful bleeding. अब डॉक्टर सदाव बातें तो कर रहे हैं, अपनी वाइफ से पूछ रहे हैं कि हम इस आदमी का करें क्या, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने सारा काम छोड़ के और बस अपनी वाइफ से बात करने में लगे हुए हैं. नहीं, उनकी जो फिंगर्स है ऐसा लग रहा है अपने आप ही चल रही हैं, अपने आप ही उस आदमी का इलाज कर, मतलब उसका ब्लड जो है उसको स्टॉप करने की कोशिश कर रही हैं. He packed the wound with the sea moss that strewed the beach. अब वहाँ पे और तो कुछ था नहीं, तो उन्होंने क्या किया, सी मोस होता है काई, ग्रीन कलर की जो आसपास मिल जाती है सी के, उन्होंने वो लिया और उसका जो घाव था, उसका जो वुंड था, उसमें उसको फिल कर दिया. अब डॉक्टर थे तो उनको पता था कि किस तरीके से इस ब्लड को रोकना ज़रूरी है, क्योंकि ब्लड नहीं रोका तो बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, ज़्यादा ब्लड अगर फ्लो हो गया तो डेथ हो जाएगी. तो उन्होंने उसे रोका. द मैन mourned with pain in his stupor हम कह सकते हैं बेहोशी की हालत, बट ही डिडंट अवेकन. अब अनकॉन्शियस माइंड में, स्ट्यूपर स्टेट में ही क्या हुआ, जब उसको जैसे ही वो सी मोस उसके घाव में डाला गया तो वो एकदम से कराया, मौन किया उसने, बट उसको होश नहीं आया, थोड़ा सा पेन वो करके वो दोबारा से अनकॉन्शियस हो गया. थोड़ा सा हम और पढ़ते हैं. The best thing that we could do would be to put him back in the sea, Sadav said, answering himself.
अब सदाव क्या कहते हैं, सबसे अच्छी बात यही होगी कि इस इंसान को हम सी में वापस फेंक दें। क्यों? क्योंकि एक अमेरिकन का ट्रीटमेंट करना, और वो भी एक प्रिजनर ऑफ वॉर का, अगर वो उसको घर लेकर जाते हैं तो आर्मी उनको अरेस्ट कर लेगी, और अगर छोड़ते हैं उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। एक अमेरिकन की हेल्प करने के ऊपर उनको पनिशमेंट दी जा सकती है, उनको जापान से बाहर निकाला जा सकता है। तो डॉक्टर सदाव ने कहा कि बेस्ट थिंग यही होगी कि हम इसे वापस फेंक दें सी में। Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hands. अब जैसे कि ब्लीडिंग उन्होंने स्टॉप कर दिया सीमोस भर के, अब वो खड़े होते हैं और अपने हाथ से डस्ट जो है, सैंड जो है, उसको रिमूव करते हैं और बात कर रहे हैं। येस अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट, हैना सेड स्टीडली। हैना कहते हैं हाँ हाँ यही ठीक रहेगा, अनडाउटेडली दिस विल बी बेस्ट, इसको वापस सी में ही फेंक दो। बट शी कॉन्टिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन। अब बेटा वो बोल तो रहे हैं, लेकिन एक ह्यूमन फीलिंग जो है वो उनको अलाउ नहीं कर रही है चीज़ के लिए, वो इस इंसान की तरफ देख रही हैं। और आगे क्या बोलते हैं, इफ़ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड, एंड इफ वी टर्नड हिम ओवर एज अ प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई, सदाव सेड। अब देखो उनकी कैलकुलेशन कितनी ज़बरदस्त है। डॉक्टर सदाव कहते हैं कि अगर हम इसको घर लेकर जाएंगे तो हम अरेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमने एक प्रिजनर ऑफ वॉर को क्यों बचाया और अपने घर में क्यों रखा, देशद्रोह का जो होता है ना मुकदमा एंड ऑल, वो उनके लगेगा। और अगर हम इसको आर्मी को हैंड ओवर करते हैं तो वो डेफिनेटली इसको मार देंगे, नेचुरल सी बात है, इसको और टॉर्चर करेंगे या फिर इसको शूट कर देंगे। तो दोनों ही सिचुएशन में इसको मरना ही है, तो बेटर है कि इसको सी में ही वापस फेंक दिया जाए। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, हैना सेड। हैना कहती है ये सबसे बेस्ट है कि इसको सी में ही वापस फेंके, क्योंकि अगर आर्मी इसको पकड़ के ले गई हमारे घर से तो वो तो पता नहीं इसको कितना टॉर्चर करेगी। तो इसके लिए हम जो काइंडेस्ट थिंग जो है, जो हम कर सकते हैं, वो यही कर सकते हैं कि इसको सी में वापस फेंक दिया जाए। बट नीदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन दोनों बोल रहे हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी गया नहीं है। They were staring with a curious repulsion upon the inert figure. Inert होता है बेजान, ठीक है, और वो बड़ा क्यूरियसली, बड़े रिपल्शन होता है, रिपल्शन हेट्रेड। देखो बेटा ऐसा नहीं है कि उनको एकदम से हमदर्दी हो गई उसके साथ, ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिकन है वो, नेचुरल सी बात है। अब आप देखो ना, अगर आपके सामने कोई पाकिस्तानी या कोई चाइनीज़, एट प्रेजेंट चाइना के साथ हमारी प्रॉब्लम चल रही है, अगर कोई चाइनीज़ सोल्जर आपके सामने आ जाए, वो भी लड़ाई के दौरान, तो क्या आप क्या सोचोगे? आपको गुस्सा आएगा उसको देख के, और आप अगर डॉक्टर नहीं हो या फिर ऐसे कोई हार्ड हार्टेड हो तो आप क्या करोगे? उसको पकड़ के उसको अरेस्ट करवाओगे या उसको खुद ही मार दोगे? तो ऐसा ही था। तो वो उसको रिपल्शन, हेट्रेड से देख रहे थे। वट इज़ ही, हैना विस्पर्ड, देर इज़ समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, सदाव सेड। सदाव कहते हैं लग तो अमेरिकन रहा है। ही टुक अप द बैटर्ड कैप, तो उसने उसकी कैप को उठाया। येस दे आर ऑलमोस्ट गोन वॉज द फेंट लेटरिंग अ सेलर, लेटरिंग इसका मतलब है उसमें लिखा हुआ था, अ सेलर ही सैड फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, ही स्पेल्ड इट आउट, यूएस नेवी, द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। अब बेटा अब उन्होंने आइडिया लगाया कि ये कौन हो सकता है, अमेरिकन हो सकता है, ब्रिटिशर है, कौन है ये। तो उसकी कैप उठाई गई और उसकी कैप में देखा गया कि फेंटेड यानी कि बहुत क्लियर नहीं थे वर्ड्स, फीके पड़ चुके थे, उस पर लिखा हुआ था यूएस नेवी, जिससे ये बात क्लियर हो गई दैट दिस मैन इज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। ही हैज़ एस्केप्ड, हैना क्राइड सॉफ्टली, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वुंडेड। अब हैना को समझ में आ गया सारी बात। कहती है अच्छा ये ज़रूर ये जापानीज़ आर्मी के हाथ लगा होगा और इसने भागने की कोशिश की होगी और इसी वजह से इसको गोली मार दी गई है। इन द बैक, सदाव एग्रीड, और सदाव कहता है इसीलिए इसके बैक में गोली लगी है। देखो बेटा आप इस चीज़ को भी समझो, राइटर कितना ब्यूटीफुली हमें ये बता रहा है कि वो भाग रहा था तभी उसके बैक में गोली लगी है। अगर वो फाइट करते हुए उसको गोली लगती तो उसको फ्रंट में गोली लगती। ये इनकी कैलकुलेशन है। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, देन हैना सेड विद रेजोल्यूशन, कम आर वी एबल टू पुट दैम बैक इन टू द सी। अब हैना कहती है चलो एक बात बताओ फटाफट, चलो हम इसको वापस फेंक दें हम सी में। इफ़ आई एम एबल आर यू, सदाव आस्क्ड। सदाव कहते हैं हाँ मैं तो रेडी हूँ, क्या तुम रेडी हो? हाँ नो, हैना सेड, बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन। हैना कहती है नहीं नहीं, मैं ऐसे किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती, क्योंकि गर्ल्स तो वैसे भी थोड़ी सी सॉफ्ट हार्टेड होती है। तो कहते नहीं नहीं, अगर तुम कर सकते हो तो तुम अकेले इसको सी में फेंक दो, भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकती इस तरीके से।
Sadao hesitated again. The strange thing is, he said, that if the man were whole, I couldn't turn him over to the police without difficulty. I care nothing for him. He is my enemy. All Americans are my enemy, and he is only a common fellow. You see how foolish his face is. But since he is wounded, देखो डॉक्टर सदाव ना अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहा है कि वो इससे थोड़ा सा हेट करे. किससे? इस अमेरिकन से. तो कहते हैं सारे अमेरिकन्स मेरे दुश्मन है. इसकी फुलिश फेस को देखो कितना बकवास सा ये आदमी है. बट सिंस ही इज़ वुंडेड, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा प्रोफेशन मुझे अलाउ नहीं कर रहा. आखिर इसको चोट लगी हुई है, कैसे मैं इसको यहाँ पे छोड़ के चला जाऊँ. यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हैना सेड. अब हैना को इतना पता चल गया कि हम दोनों में से कोई भी इसको सी में वापस नहीं फेंक सकता. यू सी हाउ फुलिश हिज फेस, sorry. You also cannot throw him back to the sea, Hannah said. Then there is only one thing to do. We must carry him into the house. अब कहती है ना, कहती है भाई एक बात तो क्लियर है ना, तुम इसको सी में फेंक सकते हो ना मैं इसको सी में फेंक सकती हूँ. तो एक ही रास्ता बचता है कि इसको हम घर लेकर चले. बट द सर्वेंट्स, सदाव एनक्वायर्ड. सदाव के दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये बात तो चल ही रही थी कि इसको घर लेकर जाए. तो डॉक्टर सदाव कहता है घर ले जाने में दिक्कत तो नहीं है, लेकिन घर में सर्वेंट्स, उनको हम क्या जवाब देंगे, क्योंकि सर्वेंट्स उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकते हैं. है ना, हो सकता है किसी को ना बताए, डॉक्टर सदाव किसी को नहीं बताएंगे. लेकिन सर्वेंट्स जो है, अगर उनको पता चलेगा कि एक अमेरिकन को हमारे घर में ला रहे हैं, वो भी लड़ाई के दौरान, वर्ल्ड वॉर के दौरान, तो वो क्या करेंगे, वो तो फटाफट कंप्लेंट कर देंगे. तो क्या करेंगे, पुलिस को बता देंगे. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके लिए वहाँ पे क्रिएट होने वाली थी. We must simply tell them that we intend to give him to the police, as indeed we must, Sadao. We must think of the children and your position. तो है ना, कहती है हम उनको समझाएंगे कि हम इसको पुलिस को कर देंगे, एक बार हैंड ओवर कर देंगे, लेकिन एक बार इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं. और हमें बच्चों के बारे में सोचना है, आपकी पोजीशन के बारे में सोचना है, बच्चों के बारे में. क्योंकि अगर डॉक्टर सदाव को सज़ा मिलती है, जेल हो जाती है, या कोई भी उनके खिलाफ एक्शन लेती है कंट्री उनकी, तो उनके चिल्ड्रन पे सबसे ज़्यादा उसका असर पड़ेगा. इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ़ वी डिडंट गिव दिस मैन ओवर अ प्रिजनर ऑफ अ वॉर, मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर. अब है ना, कहती है कि अगर हम इसको आर्मी को हैंड ओवर नहीं करते हैं, अपने घर में रखते हैं, तो हम अनडाउटेडली बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे. सो बेटा, अब उनके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अब उसको घर लेकर जाएं, उसको सबसे छुपा के रखें, या उसको वहीं पे छोड़ के चले जाएं.